Hello and welcome to all second standard students. How are you all? I hope all are fine. Okay, so today we learn about an important lesson which is in subject grammar. The lesson number 12, a use of a, and the. In previous class, we already learned about verse and verb, right? Previous class में हमने verse and verb के बारे में already पढ़ लिया है. In this class, we shall learn the use of a, and the. हम ये क्लास में a, and the का use कैसे होता है वो लर्न करेंगे. Okay, in the starting of the lesson, there are some pictures. Let's see. This is our lesson number 12, use of a, and the. In the starting of the lesson, there is some pictures. Let's see in individually. Look at the pictures and read the sentence below. This is an anthill, यानी ये चींटियों का घर है. यहाँ पे एन को हाईलाइट किया है, यानी एन का यूज़ कहाँ पे हुआ है वो दिखाया है. सो नेक्स्ट पिक्चर, एन एप्पल इज अ फ्रूट. एप्पल क्या है? एक फ्रूट है. सो यहाँ पे एन और ए का यूज बताया गया है. ओके, थर्ड लेक्चर, आई शू अ बियर. यहाँ पे ए को हाईलाइट किया गया है. इट इज अ रोज. ए को हाईलाइट किया गया है रोज के आगे, बिफोर द रोज. अ बी इज एन इंसेक्ट. बी क्या है? एक इंसेक्ट है. तो यहाँ पे ए और एन को हाईलाइट किया गया है. एन ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड. ऑस्ट्रिच क्या है? एक बर्ड है. ओके, सो ये सारे पिक्चर्स में आपने क्या नोटिस किया? लेट्स सी. The words is colored are called article. यहाँ पे जो भी वर्ड कलर में हाईलाइट किए गए थे उसे हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल. ओके, we use and before a word if it starts with a vowel. हम vowel के आगे क्या यूज़ करेंगे? n. vowel यानी a, e, i, o, u. ओके, we use a before a word if it starts with consonant. यानी a, e, i, o, u के सिवा के जो वर्ड है उसे हम उसके आगे हम क्या यूज़ करेंगे? a. ओके, सो a और n का यूज़ कहाँ पे होता है ये समझ में आ गया? ओके, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. ये सेंटेंस हमें रीड करना है और इसे अंडरस्टैंड करना है. ओके, फर्स्ट वन, देयर वॉज अ किंग. द किंग वॉज वेरी ब्रेव. यहाँ पे द को हाईलाइट किया गया है, इसलिए हमें द पे ध्यान देना है कि वो कहाँ पे यूज होता है. ओके, सेकेंड, अ शिप सेल्ड इन द अरेबियन सी. Third, the Qutub Minar is in Delhi. Fourth, my mother reads the Gita. Fifth, the stars twinkle at night. Okay, so what you have noticed? Let's clear some important points. Okay, there are three articles. They are a, and the. कितने आर्टिकल्स है? a, and the. ओके, आर्टिकल and is used before a word that begins with a vowel a, e, i, o, u or a vowel sound. Okay.
एन आर्टिकल कहाँ पे यूज होता है? वॉवेल के आगे। व्हाट आर द वॉवेल्स? ए ई आई ओ यू इज द वॉवेल्स। या फिर वॉवेल की साउंड पे के आगे भी हम एन यूज करेंगे। ओके। Article A is used before a word that begins with a consonant or gives a consonant sound. Okay? A आर्टिकल हम कहाँ पे यूज करेंगे? जो वॉवेल्स के सिवाय के यानी कॉन्सोनेंट के आगे हम यूज करेंगे, या फिर जहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड होगा उसके आगे भी हम क्या यूज करेंगे? ए। ओके। Article the is used before a naming word about which we have talked earlier. यानी the का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे? जो हमने पहले बातें बोल दी है उसके वर्ड के आगे हम क्या यूज़ करेंगे? आर्टिकल the. In sentence first यानी king वाला sentence, we used a king for the first time. When we talk about him again, we say the king. Okay. Article the is used before the names of river, sea, ocean, etc. is given in sentence 2. Right? यहाँ पे क्या है? अरेबियन सी, उसके आगे हमने क्या यूज किया है? the. Okay. Article the is used before names of famous building. For example, the Taj Mahal, the Red Fort, etc. which is given in sentence number 3. The Qutub Minar is in Delhi. कुतुब मीनार के सामने जो कि फेमस बिल्डिंग है उसके आगे हमने क्या यूज किया है? the. Okay. Article the is used before the name of holy books. Okay. जो भी होली बुक्स है, पवित्र बुक्स है, उसके आगे भी हम क्या यूज करेंगे? the. जैसे कि गीता, बाइबल, महाभारत, रामायण। ओके। ये सब बुक्स के आगे हम क्या यूज करेंगे? the. Article the is also used before names of things that are only one of the kind. For example, the sun, the moon, the star. Okay? जो कि एक ही है उसके आगे भी हम क्या यूज करेंगे? the. जैसे कि sun, the sun, the moon, the star. Okay? Now let's solve some exercise. Okay? Write A और N in the blanks. A और N के यूज से हमें सारी blanks fill करना है. Okay? First one, blank book. तो उसके आगे क्या आएगा? A book. Second, blank red apple. A red apple. Third, blank balloon. A balloon. Fourth one, blank red umbrella. A red umbrella. Fifth, blank ox. Ox यहाँ पे क्या यूज हुआ है? OX. तो O क्या है? vowel. So we used N. Okay. Sixth, blank ink pot. यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? N because I is vowel. 7, blank small bird. यहाँ पे हम यूज करेंगे A. 8, blank big elephant. A big elephant. 9, blank ink pen. N ink pen. 10, blank honest man. यहाँ पे हमने यूज करा है N. H is consonant. ये वॉवेल नहीं है, बस उसका साउंड वॉवेल जैसा है, यानी एस यहाँ पे साइलेंट है. इट्स अ साउंड लाइक ऑनेस्ट. सो हम यहाँ पे भी एन का यूज करेंगे. ओके. नाउ बी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए, एन और द. फर्स्ट वन, there is a temple in our village. Blank temple is very old. तो इसमें क्या आएगा? the.
the temple is very old. Second, I helped blank man. Blank man was blind. I helped a man was blind. Third, I eat a banana, an apple and a glass of milk in breakfast. Fourth, an old man was walking with a stick. Fifth, a teacher rebuked the naughty students. Sixth, we show the Red Fort. It is a historical building. Seventh, the Bible is a holy book. Eighth, I have drawn a nice picture. Ninth, the moon is a satellite of an earth. Okay. Now the exercise she look at the picture and complete the story by using suitable article. आपके बुक में एक पिक्चर दिया गया है सी एक्सरसाइज में, जिसे देख के आपको ये सारी ब्लैंक्स फिल करना है. मैंने ऑलरेडी ये सारी ब्लैंक्स को फिल कर दिया है. लेट्स रीड इट. Once time children were playing in a beautiful garden. Suddenly they saw a fairy. A fairy was wearing a white gown. There was a golden crown on her head and a magic wand on her hand. The children ran to a fairy. A fairy smiled and sat under an apple tree. What do you like have? A fairy asked. I want to see an ostrich, said Seema. A fairy moved her magic wand and an ostrich appeared there. The children were afraid, but a fairy said, don't be afraid, an ostrich will make you no harm. यहाँ पे कॉन्सोनेंट के आगे हमने ए यूज़ किया है और जो वॉवेल्स है ए ई आई ओ यू उसके आगे हमने एन को यूज़ किया है. और जैसे कि चिल्ड्रंस है, मोस्टली यहाँ पे द को हमने चिल्ड्रंस के आगे ही यूज़ किया है. ओके, ये स्टोरी आपको समझ में आ गया. यहाँ पे क्या है, चिल्ड्रंस लोग गार्डन में, ब्यूटीफुल गार्डन में खेल रहे थे. वहाँ पे एक फेरी आए. वो लोग ने एक फेरी को देखा जिसने वाइट कलर का गाउन पहना था और गोल्डन क्राउन पहना था अपने हेड पे, और उसके हाथ में एक मैजिकल छड़ी थी. द चिल्ड्रन रन टू अ फेरी, यानी चिल्ड्रन फेरी के पीछे भागने लगे. अ फेरी स्माइल एंड सैट अंडर एन एप्पल ट्री. फेरी ने क्या किया, स्माइल किया और एप्पल की ट्री के नीचे जा पहुंची. What do you like have? फेरी ने पूछा बच्चों से कि आपको क्या पसंद है. तो सीमा ने कहा मुझे ऑस्ट्रिच पसंद है. एंड ऑस्ट्रिच यानी ओ से स्टार्ट होता है, तो ओ इज वॉवेल. सो हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पे, एन. ओके. और फेरी मूव्ड हर मैजिक वॉन्ड. उसने क्या किया, अपनी छड़ी को घुमाया और वहाँ पे ऑस्ट्रिच आ गया. द चिल्ड्रन वर अफ्रेड. चिल्ड्रन लोग डरने लगे. फिर लेकिन फेरी ने कहा ऑस्ट्रिच से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको हार्म नहीं करेगा. ओके. कैन यू ब्रिंग अ बेबी एलिफेंट फॉर अस? लिटिल राजू सेड. Why not? A fairy smiled again and moved her magical wand. Soon the children saw an elephant coming from behind a tree. It was a small elephant. It was moving its trunk up and down. The children become happy. They wanted to ride on an elephant. फिर राजू ने बोला कि आप हमारे लिए एलिफेंट का छोटा बेबी ला सकते हो. तो
तो फेरी ने क्या बोला, वाई नॉट, क्यों नहीं। और फेरी स्माइल, फेरी ने स्माइल किया और अपने हाथ में जो छड़ी है उसे घुमाया और वहाँ पे क्या आ गया, एलिफेंट का छोटा बच्चा। कहाँ से, बिहाइंड द ट्री के पीछे से। इट वॉज ए स्मॉल एलिफेंट, वो छोटा सा एलिफेंट था। इट वॉज मूविंग इट्स टंग अप एंड डाउन, वो क्या कर रहा था, अपनी ट्रंक को, अपनी सूंड को ऊपर नीचे कर रहा था। उसे देख के चिल्ड्रन हैप्पी हो गए और उसकी राइड करने के लिए बोलने लगे। ओके, सो स्टोरी में मज़ा आया। ओके, सो ये सारी जो हमने ब्लैंक्स फिल किया है वो आपको अपनी बुक में फिल कर लेना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।